Acha ji. Assalamu alaikum. Thank you so much for having us here. And thank you, Teach for Pakistan, the fellows and other dignitaries who are here today to listen to more of the same, but hopefully something different. I'd like to start with the very quick introduction of the panelists that we have. We have Dr. Fareed Panjwani, who is the Dean at the AKU Institution for Educational Development in Karachi, और faculty हैं UCL Institute of Education London में भी. हमारे साथ मैम रिफ़त जबीन हैं जो इस वक्त डायरेक्टर हैं एकेडमिक्स और रिसर्च की फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में. आप जो फेलोज़ यहाँ पे बैठे हैं उन सब के बॉस की बॉस की बॉस की बॉस हमारे पास उमर नदीम साहब हैं जो फाउंडिंग पार्टनर हैं तबादला में. इससे पहले तालीम के साथ इनका एक पुराना वास्ता रहा भी है, सिर्फ पढ़ाई करते हुए नहीं मगर काम इन्होंने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा किया. आजकल गवर्नेंस के प्रोग्रामिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बट एजुकेशन इज़ समथिंग दैट इज़ कोर टू हिज technical expertise and his heart, I believe. And we have Fatma Suleiman, who is the head of leadership and training at the Teach for Pakistan. I'm hoping that the talia was for everyone and not just for Fatma, but bonus for everyone, I guess. That's the advantage of having the fellows in the audience. Right. Thank you so much. So today, the goal of this conversation and जो previous conversation रही है अभी, उससे थोड़ा सा leverage करते हुए, and I'm going to switch between English and Urdu. So for those who don't understand Urdu, apologies in advance. But we had communicated to the panelists beforehand that this was going to be a bilingual discussion. पाकिस्तान के अंदर जो पर्पस की मज़हर सिराज साहब ने बात की थी पिछले सेशन के अंदर, और उससे पहले की नोट के अंदर डॉक्टर फरीद पंजवानी ने इसके ऊपर एक डिफरेंट एंगल से इसको अप्रोच किया था. राइट नाउ व्हेन अ चाइल्ड इज़ बोर्न इन पाकिस्तान, एवरी पेरेंट लार्जली नोज़ कि उस बच्चे का इंदराज कैसे होना है. सो इट्स इंदराज इज़ यूनियन काउंसिल से जाके एक बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाना, अस्पताल से या रूरल हेल्थ सेंटर से उसकी एक स्लिप लेना, नादरा के अंदर जाके उसका एक शनाख्ती कार्ड बनवाना या उसका बे फॉर्म बनवाना. दिस इज़ ए बाइनरी, इट्स अ 0 and 1. अ चाइल्ड इज़ बोर्न, अ पेरेंट नोज़. द सेकेंड बाइनरी इज़ पोलियो के कतरे 6 महीने से 5 साल. Now this is something that a parent knows. This is something that the community knows. This is something that we all know. एक accepted norm है कि हर बच्चे को पोलियो के कतरे पीने हैं 6 माह से 5 साल के दरमियान. The third data point is enrollment. A parent knows कि उसके बच्चे या बच्ची ने स्कूल जाना है. Whether a parent chooses to not send a child to school is different, but a parent knows कि उसके बच्चे ने स्कूल जाना है. This is known, this is accepted, the standard has been set. The challenge in learning is कि हमें नहीं पता कि वो हमारा binary क्या है. By the age of 10, a Pakistani child should be able to do this, or should know this, or should have experienced this. That does not exist. Dr. Salman Humayun ने इस सेशन से पहले बहुत clearly ये point out भी किया that one of the challenges in learning is the complexity, but one of the challenges we just don't know what and where. So that's how I'm going to start today's session, with Dr. Panjwani being asked to delve into purpose होना क्या चाहिए हमारा. थैंक यू वेरी मच. आई विश मुझे पता होता कि क्या पर्पस चाहिए. बट आई थिंक दो तीन चीज़ें इसमें की. एक तो when you have a system of education, in a national system of education, then the purpose of the education is often very closely linked with the purpose of the society itself and the nation itself.
एज अ नेशन। तो जो हमारा क्राइसिस ऑफ पर्पस है, इट्स ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्राइसिस ऑफ पर्पस एज अ नेशन, वो साथ चलते हैं। यानी अगर आप देखें तो हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत ही डिवाउट मुस्लिम होंगे। इनफैक्ट नॉन मुस्लिम को भी हम ऑनररी मुस्लिम बना लेते हैं, इतना उनको इस्लाम पढ़ाते हैं हर जगह, ये एक्सपेक्ट करते हैं। फिर हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जी दे विल बी सिटीज़न, मगर बड़े ओबीडियंट सिटीज़न, बिकॉज वो बच्चा हर वक्त ये भी सुन रहा होता है कि छोटी सी बात पर आप पर एंटी स्टेट होने का इल्ज़ाम भी लगेगा, आप मिसिंग पर्सन भी हो सकते हैं, आप पे ब्लास्फेमी भी लग सकते हैं। सो यू वांट देम टू बी वेरी सिटीज़न ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। फिर आप चाहते हैं कि वो इकोनॉमिकली भी अच्छा हो, काम भी कर सके, स्किल्स हों उसके पास, डॉलर में भी कमाए। अब काफ़ी इस पर भी है कि जी यहाँ बैठ के वहाँ डॉलर में कमाए तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है। और फिर हम ये भी चाहते हैं कि जी क्रिटिकल थिंकिंग भी हो, एक इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट भी हो, एक ऑटोनॉमी भी हो, और भी गोल्स होंगे। मगर इन चारों गोल्स को भी अगर हम देखें तो दे आर वेरी इनकम्पैटिबल विथ ईच अदर, ये साथ चल नहीं सकते। लेकिन चूंकि हम सिर्फ पर्पस की रेटोरिक करते हैं, बोलते हैं, पॉलिसी में लिख देते हैं, उसके थ्रू सिस्टम को डिवाइस नहीं करते, तो ये चलता है, बिकॉज यू कैन जस्ट से दीज थिंग्स। एंड आई थिंक जैसे मैं पहले अर्ज करने की कोशिश कर रहा था कि ये हमारा नेशनल क्राइसिस भी है कि हु आर वी। ऑफन अगर आप देखें तो हमारी अपनी जो आइडेंटिटी है वो एंटी ज़्यादा है कि जी हम एंटी इंडिया हैं, हम एंटी वेस्ट हैं, हम एंटी ये हैं। अगर आप पूछें जी हम हैं क्या, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज हमने अपने आप से हिस्ट्री से भी अलग किया हुआ है। 1947 से पहले जो हमारी हिस्ट्री है उसको हम ओन नहीं करते हैं, उसका जो ज्योग्राफी भी है उससे पहले इसी खित्ते में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो लोग हैं, जो डिफरेंट मज़ाहिब इस खित्ते के हिस्से थे, हमने उनको भी ऑन नहीं किया। तो एक बहुत बड़ा हमारा अपना एक क्राइसिस है ऑफ आइडेंटिटी। लोग कहते हैं वी आर स्टेट विदाउट नेशन, विदाउट बीइंग नेशन, और नेशन फिर मल्टी नेशंस हैं, हम उनको भी कभी हमने एक्नॉलेज नहीं किया कि जी ये एक नेशन नहीं है बल्कि बहुत सारे नेशंस हैं। हमने कई दफ़ा कोशिश की कि जी इन सबको वन नेशन बना दिया जाए। तो आई थिंक कि जो एजुकेशन में पर्पस का क्राइसिस है, इट्स लिंक टू आवर नेशनल क्राइसिस ऑफ पर्पस, दैट्स वन थिंग आई वांट टू से। बट रिगार्डलेस, अगर आप आइडियल पूछें कि हमें क्या करना चाहिए, आई थिंक वी नीड थ्री थिंग्स जिसको हमें शायद एज अ पर्पस लेना चाहिए। देयर हैज़ टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट economic purpose of education, because you cannot have an education and individuals who cannot earn and have means of their livelihood. That's very important. But we also need to have a very important social purpose, to be able to live with people peacefully, to have tolerance, to have acceptance, diversity को respect करना, active citizenship करना, ये social purpose बड़ा important. And the third is the life inside of one's morality, one's spirituality, one's values. That is more personal. So I would suggest कि ये personal purpose, एक social purpose और एक economic purpose होना चाहिए, और ये linked भी हैं. And I think we need a debate, we need a discussion कि how to articulate them and how to then use them to guide our education system. But अभी जो हमारा hodgepodge है उससे हमें किसी न किसी तरह निकलना होगा if you want to move forward. Thank you. Thank you, Dr. Saab, for making my job harder. But if I understand correctly, जो अभी तक conversation learning poverty की पाकिस्तान में होती है, it's largely about a child's inability or a child's ability to be able to perform X function, either in a language or in maths, by grade X. वो खाली इकोनॉमिक पर्पस के साथ ही लिंक हो रहा है. यस, सो द सोशल एंड द पर्सनल बोथ आर मिसिंग फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन एज. बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच. इफ आई, अगर फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन एंड वी वुड लाइक टू एंड बाय 12:45, सो आई थिंक द इकोनॉमिक पर्पस इज इट. दैट्स द लिमिट टू व्हाट वी कैन लार्जली टॉक अबाउट. उमर, अगर आप थोड़ा सा बता सकें कि इस वक्त
पाकिस्तानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिलीवरी स्ट्रक्चर्स हैं of education, and right now the question is largely about government schools and government systems only. What kind of an administrative structure do we actually need where learning is front and center of the outcomes and the outputs that we want? थैंक यू सलमान। मुझे पता है कि टाइम कम है, लेकिन मैं ये इकोनॉमिक पर्पस वाली चीज़ को थोड़ा सा खोलूँगा। और उसकी एक वजह ये कि हमने बहुत सारे पेरेंट्स से पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड हाउ लर्निंग सिचुएट्स एट द नेक्सस ऑफ स्कूल करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स, टीचर्स सिचुएट होता है, उस पर कुछ हमने अनपैक करने की कोशिश की। हमारी एक अजम्पशन जो होती है कि हमने क्योंकि 15 साल लगा दिए किसी फील्ड में तो हमें सब कुछ पता चल गया, लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड दैट इफ़ वी take a back seat and just zoom out and assume that you don't know anything and then go back to the drawing board, you'll still find out things that we don't know. और वो हमारी बहुत इंटेंस किस्म की assumptions बन जाती हैं कि हम इस चीज़ की बेसिस पे ये सब काम करना शुरू कर दें। हमने पेरेंट्स से पूछा कि तालीम सेपरेटली और सीखना जिसे हम लर्निंग कहते हैं वो दोनों ज़रूरी क्यों है। And we got really interesting answers, and this is not a nationally representative survey, but we covered 100 plus districts across Pakistan with a very limited sample per district. और उसमें एक जो मकसद था वो बहुत क्लियरली ये था कि वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें बच्चे। एंड इसको अनपैक करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए उस प्रोसेस में तो हमारे पास इतनी स्पेस नहीं थी। बट द इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट केम मच लेटर इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लिसिट मेंशन के इकोनॉमिकली बच्चे बेहतर कर सके, जो एक बहुत इंटेग्रल कंसिड्रेशन है। लेकिन एक बेहतर ज़िंदगी जिसका एक पहलू मुआशी इस्तेकाम या बेहतरी है वो भी है। बट द पर्पज़ ऑफ, जो डॉक्टर पंजवानी कह रहे थे, द पर्पज़ ऑफ सर्विंग द नेशन इज़ समथिंग दैट वी फाउंड टू बी वेरी प्रोनाउंस्ड। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि वो मुल्क के लिए कुछ कर सकें। तो आई थिंक वो दोनों को कैसे इकट्ठे लाना है इज़ द रियल चैलेंज, जहाँ पे ये एक डाइवोर्स्ड मकासद नहीं हो सकते। एंड सो देयर टू कनेक्टेड। एंड आई थिंक ये जो पेरेंट्स की मोटिवेशन है कि बच्चे को स्कूल क्यों भेजना है, बच्चे को सीखना क्या चाहिए, वहाँ पे इसके लिए बहुत ज़्यादा एंट्री पॉइंट्स हैं टू थिंक अबाउट। बट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द डिलीवरी स्ट्रक्चर अगेन, एक तो क्योंकि डिवॉल्व सब्जेक्ट है तो हर सूबे में कुछ वेरिएशंस हैं। बट अगर आप जनरल प्रिंसिपल देखें तो थ्योरी में तो किसी भी स्ट्रक्चर को चाहे वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो काम करवाया जा सकता है, और बहुत वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर को अगर सही तरह इन्फोर्स और अलाइन ना किया जाए तो वो डिलीवर नहीं करेगा। एंड आई थिंक वी हैव अ मिक्स ऑफ बोथ दीज प्रॉब्लम्स। द फंडामेंटल क्वेश्चन आई वुड आस्क इज़ कि किस अफसर की ये जिम्मेदारी है कि बच्चे जो भी गोल्स हमने सेट फोर्थ किए हैं, चाहे वो लर्निंग पावर्टी की डेफिनेशन है कि 10 साल का बच्चा ये पैराग्राफ पढ़ सके, अगर वो एक्स नंबर ऑफ बच्चे पाकिस्तान में, और वो एक्स नंबर छोटा नहीं है, तकरीबन 80% हैं, 4 में से 5, अगर बच्चे नहीं पढ़ सकते तो किस अफसर की ये जिम्मेदारी है कि उनसे पूछा जाए कि बच्चे ये नहीं पढ़ सकते। एंड आई थिंक दैट्स द लेंस दैट आई वुड टेक टू अंडरस्टैंडिंग हाउ वेल आवर स्ट्रक्चर्स आर डिज़ाइंड। हु इज़ अकाउंटेबल फॉर दिस, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और वो आई थिंक द आंसर इज़ दैट either too many people at different levels or no one at a central level. वो कहते हैं ना, if everyone's responsible for something then no one's responsible, and I think that's the classic problem here in distributed and decentralized structures. तो क्या कोई ऐसा जिम्मेदार अफसर है जिसको दोबारा उस पोस्ट पे नहीं लगाया जाएगा, या उसको उसके बाद कोई अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी, या उसको दोबारा इलेक्ट नहीं किया जाएगा? एंड क्लियरली द आंसर इज़ नो। एंड जहाँ पे वो डिमांड साइड अकाउंटेबिलिटी वीक हो, वहाँ पे सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स को इंटरनली ये फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ते हैं। जो दूसरा पहलू इसका है वो ये है कि जब भी हम अकाउंटेबिलिटी या परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमारा पहला वो होता है कि एक डंडा चला दिया जाए, लोगों को निकाल दिया जाए, लोगों की फाइनेंशियल पेनल्टीज इम्पोज कर दी जाएँ। अकाउंटेबिलिटी से पहले जो लेयर है, आई थिंक उस पर ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है, वो है इनेबलमेंट की। बिकॉज देयर कांट बी अकाउंटेबिलिटी विदाउट इनेबलमेंट। एंड सो अगर आप क्लासरूम से स्टार्ट करें तो क्या टीचर फुली इनेबल्ड हैं टू डिलीवर द आउटकम्स दैट वी वांट देम टू डिलीवर? उनकी नॉन करिकुलर और नॉन स्कूल रिलेटेड ड्यूटीज़ का कितना इंटरफेरेंस और फ्लो है?
उससे ऊपर आप चले जाएं तो फॉर एग्जांपल डॉक्टर सलमान हुमायूं ने पहले सेशन में बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दी कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं और वो तो पहला क्वेश्चन ये होगा क्या वो सही हो रही हैं, और अगर वो आधी सही भी हो रही हैं तो वो डेटा किस तरह इस्तेमाल हो रहा है उस पर कोई डिसीजन नहीं हो रहा. सो हर लेयर पे हमें सवाल ये पूछने की ज़रूरत है कि जो मकसद है इस पूरे स्ट्रक्चर को सेटअप करने का, सस्टेन करने का, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की फाइनेंसिंग जाने का, वो मकसद क्या सारी लेयर्स पे अलाइंड है? और अगर आप जाके देखेंगे तो वो भी अलाइंड नहीं है क्योंकि हर जगह मकासद डिफरेंट हैं. और फिर वो मकसद अचीव करने के लिए जो मैं पर्सनली 3 स्टेप फ्रेमवर्क यूज़ करता हूँ, नियत और इरादा, और फिर उसके बाद काबिलियत, और फिर पूछ या अकाउंटेबिलिटी. Right? So is there the will and intention to actually align on this? Are people enabled and capable of doing this? And if they are, then are they accountable for this? कि आपने जो करना है आप वो नहीं किया तो उससे कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा. And I think if we look at this, then there are major gaps, system-wide, in different cases. वही gaps जो हैं वो लो फी प्राइवेट स्कूल्स का मसला पहले सेशन में डिस्कस हुआ था, वहाँ पे भी वही gaps एग्जिस्ट करते हैं. स्कूल के अंदर थोड़े से ज़्यादा बेहतर हैं, बट उनकी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या है और वो किस तरह उसके अंदर ऑपरेट करें. सो अगेन सेल्फ रेगुलेशन पे हम रिलाई नहीं कर सकते जब मार्केट आपका इतना बड़ा एक एस्पेक्ट जो है वो सर्विस डिलीवरी का प्रोवाइड करी हो. ऑन द कॉन्ट्री अगेन द सोल्यूशन टू दैट नॉट इज़ ओवर रेगुलेशन एंड इंटरफेयरिंग इन थिंग्स दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट बी इंटरफेयरिंग इन, एंड द आइडिया इज़ टू यूज़ दैट एज अ लीवर फॉर डूइंग दिस. बट आई जस्ट स्टॉप हियर. इसमें जो एक लास्ट पॉइंट मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा वो ये है कि इन सारी चीज़ों को अगर हम रोबस्ट और रिगरस और टाइमली डेटा के बगैर करने की कोशिश करेंगे तो एक मेजर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो फिर हम अपनी विम प्रेफरेंस इन अनइन्फॉर्म्ड तरीके से ये सारे फैसले या इन एस्पेक्ट्स को देख रहे होंगे. एंड सो द डेटा पार्ट ऑफ दिस इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट कि हम ये सारे फैसले करेंगे किस बेसिस पे. वेल जस्ट स्टॉप हियर एंड थैंक यू. Thank you, Umar. So before moving on to the next question, Umar ne bhi baat ki on the WIMS. There was recently a meeting in one of the provinces where the secretary was presiding, और वहाँ पे बात हो रही थी on the course बहुत ज़्यादा होता है early grade primary के अंदर बच्चों का, तो उसको किसी तरह से कम करने की ज़रूरत है. तो उन्होंने एग्जाम्पल दी सेक्रेटरी साहब ने कि मेरी बेटी क्लास 2 में है इन स्कूल X, वो तो 8 सब्जेक्ट्स पढ़ती है और बेहतरीन पढ़ती है, तो क्या ज़रूरत है. एंड ही वॉज टॉक दैट स्कूल्स नेम वॉज, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट स्कूल्स नेम, बट एलीट प्राइवेट स्कूल ऑफ ए कैपिटल सिटी इन पाकिस्तान. बट द डिसीशन इन दैट रूम टू वेदर टू हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन अर्ली प्राइमरी के अंदर कोर्स कम करने की ज़रूरत है कि नहीं वॉज क्लियरली शटर्ड ऑफ बिकॉज द सेक्रेटरीज फेल्ट कि उनकी बेटी जो क्लास 2 ऑफ एन एलीट प्राइवेट स्कूल में जाती हैं वो अगर 8 सब्जेक्ट्स कर सकती हैं तो सारे बच्चे कर सकते हैं. बट नाउ अनफॉर्चुनेटली, एंड जो पिछले सेशन के अंदर भी जो कॉन्वर्सेशन थी अबाउट द ब्यूरोक्रेसी, द पॉलिटिक्स, this is unfortunately still how decisions are largely made in rooms where decisions should not be made in those rooms. Fatma, आपके पास में आता हूँ. Moving from the existential to the system to the school and the classroom, have you, in your experience, seen schools functioning well and classrooms functioning well without willing और वेरी स्ट्रॉन्ग हेड टीचर्स, और अगर हेड टीचर्स ऐसे कोई मिले तो उनके अंदर क्या चीज़ ख़ास क्या है, वो व्हाट इज़ इट दैट हेल्प्स देम मेक श्योर दैट लर्निंग इन देयर क्लासरूम्स इज़ अ टॉप प्रायोरिटी? आई थिंक बहुत सारी बात हमने की है कि हाउ अ लॉट ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम आर एसेंशियली मिसअलाइंड, राइट, लाइक नहीं मूव कर रहे उस डायरेक्शन में, the right direction that we're talking about. But I think fortunately मेरा role और काम ऐसा है कि मैं बहुत सारी within this apparently broken system examples देख भी पा रही हूँ जहाँ पर these various components of the system are able to align. So I think I want to shed some light through example of when that's happening, how that's happening, और वो classroom में कैसा दिखता है.
So starting with, I think the thing that at least जो टीच फॉर पाकिस्तान के फेलोज़ हैं और फिर उसी लर्निंग को अगर हम एक्सटेंड करें कि कहाँ पर वो, चाहे वो स्कूल हेड्स की बात करें या और असातिज़ा की बात करें कि वो मुमकिन कैसे होगा, तो इट हैज़ टू स्टार्ट विद कलेक्टिव एंड कॉन्टेक्चुअलाइज्ड विजन. Because हम बात करें हाई लेवल एजुकेशन की पर्पज़ की, बट इट हैज़ टू ट्रिकल डाउन टू द लेवल ऑफ अ क्लासरूम. सो where I've seen it work is where when a teacher is keen on learning and understanding the current reality of a student, so वो अपना vision setting से पहले अपने आप को educate करें कि जिन लोगों को मैं serve कर रही हूँ उनकी ज़िंदगी, उनकी मुश्किलात, उनका predictable future है क्या, and then उनकी जो inspiration है वो सिर्फ उनकी aspirations नहीं है, but it's a shared aspiration of the teachers, the student, the most key important key stakeholder and the parents, कि वो क्या चाहते हैं. And जैसे कि उमैर ने भी कहा कि a lot of the parents and the students already know and want the best for themselves. So are we hearing and listening to that, and is that then not just limited to कि वो उस community से क्या सुन रहे हैं, लेकिन क्या teachers को वो exposure मिल रहा है कि वो जो the most important research around जो आपकी तमाम SEL outcomes हैं, academic outcomes हैं, जो global research है, वो क्या हमें सिखा रही है. So that coupled with what the aspirations on the ground reality are, and then that feeding into the classroom level goals, कि एक टीचर उसको किस तरह से ब्रेक डाउन करता है by first understanding कि यार learning levels currently क्या हैं. And I think that's where the other component of the system, which is assessments, comes into play, that are we using those assessments for learning to understand, using the formative assessments as well as the informal, जो assessment is not just a written exam or test on paper, but teacher की जो अपनी evaluation है, student behavior को कैसे observe कर रहा है, बच्चों के बीच में conversation क्या हो रही है, उस तमाम data points को वो कैसे use कर रहा है in setting classroom goals which are attuned to the current needs of the child, as well as keeping in mind where you want them to go. So that direction, that initial setting of aspiration के साथ वो in tune है या नहीं है. And I think where I've seen that work well is when a teacher is able to break those classroom goals into smaller targets to meet the child where they are, but at the same time, moving towards not just mastery of the grade level content, but जो initial aspiration की job अगर अच्छे से हुई है, बच्चों की reality को समझने की, उनके ख्वाब समझने की, उनके वालिदैन के ख्वाब को समझने की, coupled with what the research is telling us about what are the essential socio-emotional skills, mindsets, behaviors, knowledge that a child needs to thrive in the future, then the teacher is able to add inform their teaching practice and their goal setting in line with that. And I think जहाँ वो हो रहा है वहाँ पर सारे जो चाहे वो assessment हैं, चाहे वो curriculum development है, चाहे वो teacher training and support है, वो incentivize कर रही है teacher को भी कि वो holistically student की well-being को center में रख के और उसकी तमाम तरह की growth and development को नज़र में रख कर teach कर रही है. And I think I want to talk about how we do that at Teach for Pakistan a little bit to give that sense of possibility here, because I think we are very much working within the system, जहाँ हमने यही curriculum भी use करना है, यही textbooks भी use करनी है, but within this, the teacher is still able to go beyond just grade level, achieving grade level mastery, but actual deep conceptual understanding of those topics, where the teacher cares about that the child is able to not just learn through rote memorization, but apply those knowledge and skills on a variety of, let's say, problems beyond the what the textbook is explaining, where the teacher is committed to work on the foundational learning and skills that are necessary for the child to thrive in the future. And I think that is possible because the way the formative assessments are designed and the way, let's say, the Teach for Pakistan does the summative assessments, those are also then incentivizing a teacher because they know that the summative assessments are not going to test just the rote memorization. Similarly, I think the teacher who is able to sort of not just use the curriculum and the textbook as is, but evaluate like that, what kind of coaching and training is necessary. And I think
बिकॉज जो मैंने तस्वीर थोड़ी सी पेंट करने की कोशिश की है, ये एक ऐसा टीचर है जो कि बहुत सारी नेसेसरी, जिसने विजन सेटिंग पे काम किया, उसको सपोर्ट भी मिली, उसने खुद भी वो अट्यूनमेंट थी, बट वो उसके साथ साथ बहुत सारा नेसेसरी रिसर्च कर रहा है, वो एक्स्ट्रा आवर्स लगा रहा है, वो कंटिन्यूसली अपनी अप्रोच को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वो हर दफ़ा एक यूनिक चैलेंजेस के सामने परसिस्ट कर रहा है. सो दिस काइंड ऑफ अ टीचर, इफ़ यू वांट टू नर्चर this kind of a teacher, then I think you don't need to tell them more technical solutions कि ये teaching pedagogy अपनी इस तरह से improve कर दो, ये method ऐसे change कर दो. And this is I think what we've learned in our work here as well, that when जो पंजवानी साहब ने सुबह बड़ी खूबसूरत बात की थी, that education of not just the mind but also of the heart and the soul. If you want a teacher who cares about the education of the heart and soul, then somebody has to ensure that kind of education for that teacher. Somebody has to care about the heart and the soul of that teacher. And I think that is what I feel like we're trying to really unlock by not just providing the technical solutions, but really giving the high level, setting that direction, and then providing the coaching support and the training support that goes beyond just providing the technical support. I think the heart of that coaching support lies in enabling teachers to find their own purpose in this work and why they are here and why do they care and why do they continue to care after day in and day out of doing this work. It is about holding the space for a teacher to do that inner work for themselves, that when they're going to come across those personal barriers, how are they going to overcome those. It is also very much about building their muscle of pausing, reflecting, acknowledging the small wins and the progress that they're seeing, setting intentions and goal setting for the short term, next term that they have in coming. So I think it is this kind of a support system in place, coupled with even the accountability mechanisms that we have seen to really sort of incentivize in the right way and not push the teachers to cheat the system, are the ones which are not just based on one data point, that one person walked into the classroom, one single classroom observation told us that this person is a make or break. So it's a pattern that we're seeing. It's a before the accountability in terms of consequence came in, was there a conversation about shedding light, helping the teachers see that where they are standing, where they needed to be, and what is the support plan to get there. And despite that kind of support being given consistently, if somebody is still falling behind, then what kind of consequences have to be in place? Those are which are just not one event, based on one-off event or sort of a moment, but rather than a pattern, a series, and pulling on a number of data points rather than just one. So I think, yeah, those are some of the big reflections of how we've done. So, support system, if I understand correctly, one of the challenges is जो आज स्टूडेंट हैं आपके पास क्लासरूम्स में, उनमें से एटलीस्ट अगर हम पॉपुलेशन को फिक्स कर दें इसी जगह के ऊपर, in another 10 years from now, 2 million of them are going to be teachers, either in private schools or in government schools somewhere. So if we don't fix that problem today, then we can't fix that problem tomorrow. And if we're unable to fix that problem today, it's going to get worse, and it has gotten worse, unfortunately. इस वक्त आपका सारा employer, including the education department, is unable to get the quality of human resource that they could get 10 years ago, or 20 years ago, or 30 years ago, and it has consistently gone down. और उसके एक बहुत बड़े जो असरात हैं वो ये कि अगर हमने आज एटलीस्ट उन 2 मिलियन बच्चों पे इन्वेस्ट ना किया जिन्होंने टीचर बनना है, और हमें नहीं पता कि वो कौन 2 मिलियन होंगे, तो सब पे करना पड़ेगा, तो कल के बच्चे आज के बच्चों से भी ज़्यादा बुरे हालात में बैठे हुए होंगे इन्हीं क्लासरूम्स में, और उस वक्त भी FCDO फंड कर रहा होगा इसी तरह की रिसर्च को और इसी तरह के इवेंट्स को और इसी तरह की कॉन्वर्सेशंस को पोटेंशियली. So let's try, and through this conversation, through larger conversations, through our own internal networks, try and push towards that shared understanding of what those solutions potentially are and advocate them hard. अब advocacy की बात है, आपकी तरफ आते हैं. Ma'am, you've been an educator inside a classroom, you've been a head teacher in a school, now you're the boss of all head teachers in the Federal Directorate.
इस वक्त जो फातिमा ने भी बात की थी ऑन सपोर्ट सिस्टम, हमारा जो लर्निंग के जो भी हम गोल सेट करते हैं, हाउ फार आर वी फ्रॉम अचीविंग दोज गोल्स विद इन एन एब्सेंस ऑफ अ सपोर्ट सिस्टम, एंड व्हाट शुड दैट सपोर्ट सिस्टम लुक लाइक इन द सरकारी स्ट्रक्चर? Thank you, Salman. I've been invited to this panel suddenly, but I'm happy to share my views regarding the support system and the whole education system and what we want our education system to work for us. सर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम एक जो हम चाहते क्या हैं अपने एजुकेशन सिस्टम से. This is very important, and for me to prepare an individual to meet the challenges of tomorrow. जो challenges आज हैं हमें हो सकता है वो challenges कल इससे बिल्कुल different हो. आज जिस तरह के circumstances हैं कल circumstances इससे बिल्कुल different हो. तो overall we need to prepare a child or a student to meet the challenges of tomorrow. और उसके लिए definitely the key element is the teacher in the classroom. लेकिन सवाल ये पैदा होता है अगर हम पूरे पाकिस्तान की overall बात करते हैं तो क्या क्लास में टीचर है भी या नहीं. सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ टीचर्स हैं. डू यू हैव अ गुड एंड हेल्दी टीचर स्टूडेंट रेशियो इन द स्कूल्स. हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम अ क्लास ऑफ 80+ स्टूडेंट्स कि वो जो टीचर वहाँ पढ़ा रहा है वो इतना इक्विप्ड होगा और उसके पास कोई मैजिक स्टिक होगी कि वो एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करेगा, एक ऐसे चाइल्ड को ब्रॉट अप करेगा जो कल के चैलेंजेस को भी मीट कर लेगा, जो करिकुलर टारगेट्स को भी मीट कर लेगा, जो हर तरह से फुली इक्विप्ड होगा, जिसकी पर्सनालिटी की ओवरऑल ग्रूमिंग भी हुई होगी. और हम उससे जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस टीचर से हमारी बहुत हाई हैं. लेकिन क्या हम उसको उस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं. बिल्कुल डेटा और रिसर्च और एविडेंस के बगैर हम ये नहीं कह सकते कि एक टीचर को एक्चुअली what he or she is facing in the classroom, उसके challenges क्या हैं. We need to know those challenges. और फिर support system in place होना चाहिए. It's very important कि teacher को हमने we have seen a critical gap and challenges between teachers' qualification and the students' learning outcomes. और public sector में हमने देखा है कि teachers are very well qualified, लेकिन unfortunately the learning outcomes of students, they are not improving or we have not been able to enhance them. और उसका reason other challenges के अलावा एक बहुत important जो है that is teachers training programs. Teachers training programs में जो होता है क्या classroom में वो situation है actually जो teacher classroom में face कर रहा है क्या उन teachers training programs में उसको address किया जाता है या नहीं address किया जाता. This question is very important to address. So मेरा ये ख्याल है कि हमें टीचर को इस वक्त सपोर्ट देने की ज़रूरत, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली द कैपेसिटी बिल्डिंग, वो तो एक है ही है, लेकिन उसके साथ साथ द चैलेंजेस ही और शी इज़ फेसिंग डे टू डे इन द क्लासरूम, उसके लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम मौजूद होना चाहिए जिसमें पोस्ट ट्रेनिंग मेंटोरशिप और डे टू डे जो उसको जो कुछ वो फेस कर रहा है, जिन भी चैलेंजेस को उसको मीट करना है, उसके लिए चाहे वो फाइनेंशियली हमें उसको सपोर्ट करना है, क्लासरूम को इक्विप करना है विद द टूल्स, जैसे कि अभी हम ये कर रहे भी हैं और वी हैव सीन कि इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन वहाँ से सवाल शुरू हुआ था कि क्लास में टीचर है भी या नहीं है, फिर उसके पास सफिशेंट टूल्स हैं या नहीं, क्लास साइज उसके लिए कितना रीज़नेबल है जिसमें वो अपनी जितनी भी उसके पास जो क्वालिफ़िकेशन है, चाहे उसकी कैपेसिटी है, चाहे उसके पास टूल्स हैं, उनको किस तरह से फुली इम्प्लीमेंट कर सकता है या नहीं. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और जब तक हम इन सारी चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे हम एक टीचर से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते. करना चाहूँगी कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स, और हम हमेशा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये कहते हैं कि क्लासेस में जो है वो इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को हमें प्रमोट करना चाहिए. येस वी शुड, लेकिन क्या असेसमेंट सिस्टम भी उसके साथ अलाइंड है या नहीं. टीचर ये कहता है कि वो क्लास में जो पढ़ा रहा है, एंड ऑफ द डे एग्जाम में बच्चे के जो स्कोर्स हैं एंड रिजल्ट्स,
Those scores and results are important for the educational administrators, for the whole system. क्या हमारे लिए ये important है या नहीं है कि हमने बच्चे की personality development, उसकी overall grooming के ऊपर कितनी input दी and where it is assessed. तो assessment system जो है it's also not aligned with whatever we are expecting from the teachers. थैंक यू जी। अब आपने एक मुश्किल में डाल दिया है क्योंकि जवाब से हम और ज़्यादा दूर हो गए और सवाल जो है वो पैदा हुए विच इज़ अ गुड प्रॉब्लम टू हैव ऑलवेज। डॉक्टर साहब, आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू ऑन दिस नाउ, एंड दिस इज़ with reference to something that you've constantly advocated over the number of years on defining what a learning environment looks like or what learning looks like. कि learning के अंदर जो other than English, Maths, Sindhi, Urdu और कौन से ऐसे features हैं जो हमें देखने ज़रूरी हैं for a child's overall development in that space. This goes back to what we want out, what kind of society and what kind of individual we want. अभी उस पे जाए बगैर अगर हम इस पर आएँ कि जी education में more concretely क्या. So clearly today we cannot have a future without not just technology but science. Science and technology are two different things. The grasping of science is absolutely important. उसकी application technology के through है वो भी, and mathematics is there, and languages. I think it is very interesting. एक तरफ languages की importance है, दूसरी तरफ अब जो gadgets आ रहे हैं वो AI वो इतना इनेबल कर रहे हैं लोगों को टू कम्युनिकेट कि अगर आप एक भी लैंग्वेज आती है तो यू वन कैन प्रोजेक्ट इट फॉर नेक्स्ट 5-10 years कि इतना इजी हो जाएगा किसी और लैंग्वेज में न जानते हुए भी कम्युनिकेट करना. मगर लैंग्वेज इज़ नॉट जस्ट अ टूल फॉर कम्युनिकेशन, इट ऑल्सो डेवलप्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी बिकॉज वी थिंक थ्रू लैंग्वेज. सो जो मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं उससे होता ये है कि यू कैन लुक एट द वर्ल्ड, क्योंकि एक ही चीज़ के लफ्ज़ आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिलते हैं. आप देखिए ना, इंग्लिश में वर्ड लव ऑलमोस्ट इतना मल्टीपल जगहों पे यूज़ होता है, और पर्शियन में, उर्दू में बड़े एक नुआंसेस हैं जिसमें आप इसी के डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. सो अगर यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तो थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मल्टीपल लैंग्वेजेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है. फिर आई थिंक हिस्ट्री का ग्रास बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी हिस्ट्री पढ़ाना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इनडॉक्ट्रिनेट नहीं होंगे अगर आप बहुत अच्छी हिस्ट्री जानते होंगे, बिकॉज यू वुड सी दैट वेयर यू आर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ डिसीजंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द पीपल, एंड यू ऑल्सो फील एम्पावर्ड कि जब और लोग डिसीजंस लेके चीज़ें चेंज कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं. लिटरेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू कम्युनिकेट विद योर सेल्फ एंड टू हैव अ सेंस ऑफ what does it mean to relate to others, the feelings. Or literature and history also have the capacity to create a cosmopolitan ethics. आप देखिए ग्रीक मिथोलॉजी एंड ग्रीक प्लेस आज भी हम पढ़ सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट कल्चर, मगर लिटरेचर शोज अस कि वो भी ह्यूमंस थे और किस तरह से वो उनके साथ कनेक्ट थे. द रशियन नॉवेल्स ऑफ द 19th century still speak to us, बिल्कुल इसी तरह से. So the literature and history have that power to their. And finally, I would say a very good understanding of religions, because वो बहुत important हमारी ज़िंदगी में रोल प्ले करता है. हम जितना important religion society में है ना, उसके मुकाबले में जिस तरह हम पढ़ाते हैं वो बिल्कुल ही कंट्रास्ट है. I would think कि एक academic understanding of religion भी होनी चाहिए, और एक नहीं बल्कि हर इंसान को, बच्चों को कम से कम एक से ज़्यादा 2 या 3 religions की understanding होनी चाहिए. I think this is just, अगर हम चाहते हैं कि एक सोसाइटी हो जो टॉलरेंट हो, जो प्रोग्रेसिव हो, जहाँ इकोनॉमिक्स भी हो और जहाँ ह्यूमन कंसर्न्स भी हो, तो ये दोनों फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड फैकल्टी ऑफ साइंसेस हमें साथ लेके चलनी चाहिए. Thank you, Dr. Sir. Before we go to
question and answers, and we have time for comments also. I would like to go across all panelists. With everything that's happening in the education space, बेतहाशा projects, बहुत ज़्यादा programs, बहुत ज़्यादा development partners, in some cases incapable or आप कह लें कि uninformed decision makers. फिर आपके पास political domain है. With everything that's there, what in your opinion needs to be pulling to the direction that you want things to happen? पैसे हो सकते हैं, वो classroom हो सकता है, वो teacher training हो सकती है, support हो सकती है, anything that you feel is non-negotiable when it comes to learning. So I'll start with Umar and I'll go to Fatma. मुश्किल सवाल है सलमान, बट बहुत ज़रूरी भी है. आई थिंक हम प्रॉब्लम्स को बहुत डिफरेंट एंगल से हमेशा एडमायर और अप्रिशिएट करते रहते हैं, बट थिंकिंग अबाउट वेयर टू स्टार्ट इज़ रियली इम्पोर्टेंट. मेरे ख्याल में अगर हम ये फैसला कर लें और वो फैसला प्राइमरली 2 लेयर्स पे एग्जीक्यूट होना है, विच इज़ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड ब्यूरोक्रेसी, कि जितने पैसे एलोकेट हो रहे हैं उनसे हमने बहुत हाई वैल्यू फॉर मनी एक्सट्रैक्ट करना है और फिर हर चीज़ उसके अराउंड हो. और वो हाई वैल्यू ऑफ मनी क्या है, वो अगेन वैल्यू पे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या है, बट आई थिंक गिवन वेयर वी आर, वी हैव सम वेरी क्लियर मेट्रिक्स टू फोकस ऑन, एंड इफ वी हैव सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस जहाँ पे उन मेट्रिक्स को गेम करना पॉसिबल ना हो, तो हमारी डायरेक्शन सही हो सकती है. आई थिंक दैट वुड बी वन की थिंग. Adding more resources to a leaky bucket, I am personally not in favor of it. There is no doubt that we need more money invested in education, but I think we are already investing. जो numbers invest कर रहे हैं उनसे अगर हम जो results निकल रहे हैं उसको देखें तो बहुत डेल्टा है, and that's the starting point, क्योंकि वो पैसा system में already available है, allocated है, लोग हैं, infrastructure है, all that. The second thing is पहले मैं कहता था कि स्टूडेंट को सेंटर करें, बट आई थिंक स्टूडेंट एंड टीचर बोथ नीड टू बी एट द सेंटर. वन थिंग दैट आई हैव पिक्ड अप इन दिस डिस्कशन इज हम टीचर को अभी भी समवॉट मैकेनिकल एजेंट के तौर पे देख रहे हैं, और ये रियलाइजेशन फ्रैंकली मुझे ज़्यादा हुई जब कोविड में हमने काम करना शुरू किया, कोविड रिस्पॉन्स पे. तो एक बेसिकली ना वो आप जैसे कह रहे हैं नी जो एक रिएक्शन था कि टीचर को ये कह देते हैं. The teachers were also going through COVID. They had cases in their family. अभी हम एजुकेशन और क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं, और वो एक अगेन बाय डिफ़ॉल्ट एक हमारा सोच होती है कि जी टीचर को इन मज़ीद चीज़ों पे ट्रेन कर दें और टीचर को जो है वो जिम्मेदार बना दें इन एक्टिविटीज़ का. जब कहीं पे क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर आता है तो टीचर क्योंकि उस कम्युनिटी का हिस्सा है वो भी उतने ही इफेक्ट होता है. सो स्टूडेंट एंड टीचर बोथ नीड टू बी एट द सेंटर ऑफ हाउ वी थिंक अबाउट व्हाट द सिस्टम विल डू. एंड दैट ह्यूमन एलिमेंट ऑफ टीचर, मतलब फ्रैंकली मुझे रियलाइजेशन हुई जब मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और आधा घंटा उनके साथ आप उन्हें कुछ फोकस से कराने की कोशिश कर लें, और टीचर जो 6 घंटे स्कूल में गुजार रहे हैं, there has to be out of school support for teachers and how to navigate all of that for 30 or 40 or 50 years, right? That's not an easy undertaking. And then the last thing is कि and that's my personal preference कह लें, bias कह लें कि हम अभी भी टेक्नोलॉजी को जिस तरह लेवरेज कर सकते हैं नहीं कर रहे. And I think we should start thinking about how we can catalyze a lot of these tried and tested failures for success through technology. Thank you. Thank you, Fatma. I think बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो जहन में आ रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट. If I have to start from somewhere, I think because I've seen this happen in a smaller system of Teacher Pakistan, I think a similar how can a similar model be replicated in each individual school? तो मेरे जहन में जो head teacher या principal, so I would say investment in human capital, particularly for that head teacher and principal. Even before we talk a lot about decentralization and having more financial autonomy, जो principal के पास हो, recruitment की autonomy हो, I think ideally speaking yes, but वो उससे भी पहले, क्योंकि अगर इनफ हमने ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं किया होगा
तो वो ज़्यादा autonomy is या ज़्यादा resource allocation is not going to solve the problem. And I think if you talk about that human capital investment in holistic manner, where all of these things that I talked about earlier, a school head can think of that for their own individual school, whether that's अपने school के level पे what are the challenges of this community and what kind of a learning and education needs to happen so that the kids of this community are attuned into their reality and context and the problems that they need to take on. And so that kind of vision setting has to happen at a school level, and that sort of teacher के level पे जो support है, जो understanding है, जो gaps नज़र आ रहे हैं उनको कैसे handle करना है. अगर एक teacher जो है वो extended leave पर जा रहा है तो मैंने उसकी जगह किस तरह से replacement को arrange करना है. और and all of that goes without saying that student is very much the center of it, because अगर if learning is and student well-being is the ultimate aim of this conversation, then वो तो remains at the center of it. But I think if there's investment into at the school head level where their understanding is being strengthened, so that can then be sort of passed on to the teachers and then supporting them. The head can work beyond just an administrator in the school, can work as the mentor, as the coach, as the person of support that's ensuring that all the components of that larger system are in line and working in tandem within that smaller school system. So I'm feeling like if I have to pick on one thing that feels most important, so I'll start with this. Thank you. Very interesting. And before I move on, समथिंग जो अभी मैम रिफत ने बात की और उमर ने उसको सेकंड भी किया और एक्सपैंड भी किया, एंड समथिंग दैट यू जस्ट सेड, फोकस सिस्टम का हमेशा जनरली या इस तरह की कॉन्वर्सेशंस का ये होता है कि टीचर्स से हम ये करवा लें या हमारी एक्सपेक्टेशन टीचर से है जनरली. और रिसर्च पाकिस्तान के अंदर भी यही कहती है कि जहाँ पे विलिंग और कॉम्पिटेंट हेड टीचर्स हों, दे आर एबल टू गेट मोर डन, आइदर कम्युनिटी इंगेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, लर्निंग के हवाले से, टीचर्स की को किस तरह से मैनेज करना है उस हवाले से, वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं. हमारी लाइसेंसिंग प्रैक्टिसेस पाकिस्तान के अंदर जो भी कॉन्वर्सेशन होती है वो भी टीचर्स के हवाले से ही होती है, हेड टीचर्स की नहीं होती. जो ट्रेनिंग की बात आती है तब भी हम टीचर्स की ही बात करते हैं, हेड टीचर्स की नहीं करते. सो आई थिंक दैट्स एक्सट्रीमली वैलिड पॉइंट, स्पेशली फ्रॉम अ वैल्यू फॉर मनी एंगल. मैम रिफत, आप अगर बहुत सारे एंगल्स हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी आपका दफ्तर काम कर रहा है, बट इफ़ यू वर टू पिक वन एलिमेंट जिसके बगैर, जिसके अंदर मैसिव इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट ना की अगर हमने, तो हम फर्मा अपना सीधा नहीं कर सकेंगे. जी बिल्कुल, सारे ही कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. विदाउट फाइनेंसिंग आप कुछ भी नहीं अचीव कर सकते. और मेरा ख्याल है कि अभी भी 1.7 इज़ टू लेस ऑफ द GDP विच वी आर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन. और आज मेरे ख्याल में अगर हम ये इंक्रीज़ करेंगे फाइनेंसिंग इन एजुकेशन, तो कल को आपको ज़रबे अज़ब के ऊपर बहुत नहीं स्पेंड करना पड़ेगा. तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि एजुकेशन शुड बी द foremost priority of all the governments, not in terms of political speeches or cosmetics, बल्कि हमें इसके ऊपर सोचना है कि हमें फाइनेंसिंग इंक्रीज करनी है एजुकेशन पे. एंड विद इन एजुकेशन सबसे जो इम्पॉर्टेंट है फॉर मी, इट्स द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेड टीचर्स, ऑफ द होल सिस्टम. इवन मैं ये समझती हूँ कि स्कूल के एक एनवायरनमेंट में अगर आपका कोई नॉन टीचिंग स्टाफ है तो उसकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट शुड बी अ रिगरस कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, नॉट वन टाइम. ओवरऑल अगर आप एजुकेशनल इन्वायरमेंट को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें वी शुड इन्वेस्ट हैवीली बिकॉज वी हैव highly qualified teachers but they are not able to deliver well in the classroom. Or the reason is only one, that they are not trained to get those learning outcomes from the students which they should. तो इसके ऊपर तो there is no question. और फिर उसके बाद there is another area which is always neglected in public schools. तो मैंने देखा है कि curriculum के साथ जो aligned learning material और content है उसके ऊपर financing बहुत कम है.
तो उस जो अलाइंड कंटेंट है और जो उसके साथ सपोर्टिव कंटेंट है जिसके ऊपर हमें स्पेंड करना चाहिए, नॉट ओनली द टेक्स्ट बुक्स, कभी हम पब्लिक सेक्टर में कोई वर्क बुक्स और इस तरह की चीज़ें इसीलिए नहीं इंट्रोड्यूस करवा सकते बिकॉज वी हैव नॉट सफिशिएंट बजट फॉर दैट। तो फाउंडेशनल लर्निंग के ऊपर जब हम काम करना चाह रहे हैं और हम देख रहे हैं कि द लर्निंग पॉवर्टी हैज़ इंक्रीज टू मच, 70% ऑफ इट इज स्टिल देयर, तो फॉर द एलाइट कंटेंट एंड फॉर द टेक्स्ट बुक्स डेवलपमेंट, अच्छी क्वालिटी कंटेंट डेवलप करने के लिए भी वी नीड फाइनेंसिंग। लेकिन इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज़ द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्कूल लीडर्स, ऑफ टीचर्स, ऑफ द होल सिस्टम। तो जैसे जैसे खाना की ब्रेक करीब आती जा रही है, तालियों की जो गूंज है वो गूंज से बहुत ही नीक किस्म की आवाज़ में कन्वर्ट होगी। डॉक्टर साहब, इफ़ यू वर टू, वो होता है ना ऑनरी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं किसी को, तो अगर आपको आज ऑनरी मिनिस्टर बनाए या ऑनरी सेक्रेटरी बनाए या ऑनरेबल सेक्रेटरी बनाए, आई शुड से, what would you do? What is the first administrative action, executive decision that you would take? Impossible to say. मैं थोड़ा आसान क्वेश्चन लूँ जो आप पहले पूछते हैं। इसमें दो चीज़, एक चीज़ पहले भी, अभी जब लाइट चली गई थी ना यहाँ, तो you saw how people reacted so wonderfully. सबने अपनी लाइट्स ऑन की, and I really felt this is such a spontaneous collective response to a challenge. And I really feel कि ये नतीजा आपकी ट्रेनिंग का भी नतीजा है। I really felt बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, उन्होंने रेजिलियंस शो की। अच्छा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़ जो मुझे लगता है जहाँ पर हमें बहुत एक क्विक नज़र रखनी चाहिए, right now also 2 out of 5 people in our country are not literate in the functional sense as well, let alone anything else. And half of the children are out of school. हमने उनकी बात नहीं की थी, लेकिन आप अगर टाइम में आगे प्रोजेक्ट करें तो इन 15-20 years अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो perhaps every second person will not be literate. Then we will be in the dustbin of history. It's simply not possible. आप पब्लिक एजुकेशन ठीक भी कर लें, प्राइवेट भी ठीक कर लें, लेकिन अगर आधी आपकी पॉपुलेशन आउट ऑफ स्कूल में है, उसको नहीं किया, सो अगर मुझे आप कुछ बनाएंगे तो बाकी सब चीज़ों के साथ आई रियली टेक इट एज एन एमरजेंसी टू वर्क ऑन इट। ये गवर्नमेंट ने भी लिया लेकिन कुछ किया नहीं। आज एक कमेटी भी बनाई थी, वो कमेटी भी नहीं मिल रही, उस पर भी ज़्यादा काम नहीं। लेकिन आई रियली थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो बिल्कुल ही इस सिस्टम से बाहर है, उनको किसी तरह से टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक सोसाइटल इशू बना के, आप सबकी कैपेसिटीज़ यूज़ करके, वी नीड टू गिव देम एटलीस्ट द बेसिक्स टू बी एबल टू बी अ फंक्शनिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। Thank you, Dr. I'm not sure if that's still applicable today, but एक पुराने ज़माने में जब मैंने इंटरमीडिएट किया था तो उस वक्त जब आप अपना एडमिशन फॉर्म भेजते हैं कॉलेज से बोर्ड को, तो उसके अंदर फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर ट्रांजिशन के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त फॉर्म के अंदर आखिरी क्लॉज थी और उस क्लॉज के अंदर ये लिखा हुआ था कि मैं इस बात का अहद करता हूँ, आई एम पैराफ्रेजिंग बिकॉज इट्स बिन वेरी वेरी लॉन्ग, कि मैं इस बात का अहद करती हूँ कि बिटवीन नाउ एंड दिस बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ माई सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट मैं एक इंसान को या लिटरेट करूँगा। वो फॉर्म के अंदर मुझे नहीं पता कि वो क्लॉज किसने डलवाई, किसी भले वक्त के अंदर किसी को ख्याल आया होगा इस बात का। गोज़ ऑल्सो टू द social purpose that Dr. Saab was referring to, but learning, and he's absolutely right, the learning challenge is not for those who are in school, the learning challenge is also for the ones that aren't. The learning challenge is for everyone. And with that, we open for questions and comments and critiques. This is me, Syed Tehseen, 2024 फेलो ऑफ फॉर पाकिस्तान। जो सर आपने लास्ट में क्वेश्चन किया डॉक्टर साहब से, अगर आप ये मुझसे पूछते तो मेरा रिस्पॉन्स पर यह होगा कि सबसे पहले जो प्री प्लेसमेंट कैपेसिटी ट्रेनिंग है टीचर्स की, खासकर गवर्नमेंट स्कूल में, उसको बढ़ाया जाए।
इसकी वजह यह है कि जब गवर्नमेंट टीचर एज अ फ्रेश ग्रेजुएट्स या फिर वो वेरी लिटिल टू फ्यू ट्रेनिंग लेकर प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट सेक्टर में आ रहे होते हैं, तो वे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर क्या की जाए, क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज होती हैं, यहाँ रिसोर्सेज नहीं हो रही होती। तो इसलिए उनको जब ट्रेनिंग दी जाए तो एक हफ्ता या 1.5 हफ्ते की ट्रेनिंग नहीं दी जाए, बल्कि एक एक्सटेंसिव कंटेक्चुअल ट्रेनिंग दी जाए कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं, यहाँ आपने इस तरह परफॉर्म करना है। क्योंकि जब वो वहाँ पर आते हैं, हम देख रहे हैं वो कितने कंफ्यूज हो रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हमें यहाँ पर क्या करना है। तो इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है, वहाँ पर उनकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होनी चाहिए, कम से कम 1 महीना होनी चाहिए, जिस तरह TSP के फर्ज की होती है। दूसरी बात, एज अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी मैं ये बात समझता हूँ कि यहाँ पर पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में एक गैप है। गैप इस तरह है कि हम रोजाना देखते हैं हमारे स्कूल के ग्रुप्स में हज़ारों डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं कि आज ये होगा, आज ये होगा, आज ये लेसन प्लान का डॉक्यूमेंट है, आज ये टीचर ट्रेनिंग का डॉक्यूमेंट है। लेकिन हम देख रहे हैं वो सारी चीज़ें आ रही हैं, बट वो टीचर वो काम नहीं कर रहे, वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। वो लेसन प्लान जो हम कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे? वो चीज़ें जो हम कर सकते हैं, अगर हम वहाँ ब्रेक खत्म होती है, ब्रेक के बाद हम क्लास में जा सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट टीचर क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब है वहाँ बिल की कमी है, वहाँ पर्पस की कमी है। तो उनके पर्पस पे काम किया जाए, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे अच्छे से काम किया जाए, क्योंकि जब तक ये इंश्योर नहीं होगी तब तक मैं नहीं समझता कि टीचर अच्छे से काम कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। Thank you for your comments. We also have questions from this side, so we would like to balance and cover all sections of the aisle. जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी। आ रही है? ओके, सो मेरा नाम अनीशा जावेद है और मैं फेलो हूँ टीचर पाकिस्तान पे। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद saying that my knowledge and my understanding of the system might be very limited, but my experience with ground realities is not. But I want to say कि हम मतलब FD जितने भी projects introduce कर रहे हैं, all of these are great, commendable work, excellent work, necessary, important, everything. बट हम एक assumption पे चल रहे हैं कि नई चीज़ें आने से पुरानी चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। पुराने सिस्टम्स उसी जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें हम एडिशनल चीज़ें ऐड करे जा रहे हैं, विच इज़ बिकमिंग टू मच टू सून। हम पुराने सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, उनको ख़त्म हम किस तरह करेंगे, तभी अगले सिस्टम्स हम कह रहे हैं ना काम नहीं कर रहे, टीचर्स काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, बिकॉज वो अभी भी उसी सिस्टम का हिस्सा नहीं, उसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं। एक चीज़ को नई चीज़ ला देने से पुरानी चीज़ें हल नहीं हो जाती, पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती। सो व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इरेडिकेटिंग ऑल दोज सिस्टम्स जिनके हम बात करते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, रादर देन जस्ट इंट्रोड्यूसिंग नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने के अलावा हम उनके लिए क्या कर रहे हैं उनको खत्म करें। Thank you. So before we जितनी देर में अगला माइक पहुंचता है, this is akin to very poor change management processes. Corporate sector के अंदर this is an area जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा spending और efforts भी होती हैं, और generally इसके लिए कोई general manager type positions भी होती हैं। Change management का example बहुत clear है, जैसे हमारी दोस्त ने भी कहा, आप U-turn का साइन लगा हुआ है और वहाँ पे एक U-turn है, कल को एक साहब आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि ट्रैफिक कैसे मैनेज करनी चाहिए, और इस U-turn को वो बंद कर देते हैं। U-turn का साइन वहाँ से नहीं हटता, U-turn बंद होता है, U-turn का साइन नहीं हटता है। इज बेसिकली व्हाट वी डूइंग ओवर एंड ओवर अगेन विदाउट एक्चुअली मैनेजिंग द चेंज। जी, नेक्स्ट प्लीज। Yeah, my name is Hassan Junaid. I'm a 2023 fellow. So we're hearing about the budget. Budget के बारे में काफ़ी लोगों ने आज बात की, और दो तरह की बात आई। एक तरफ ये बात भी आई कि बजट कम है, दूसरी तरफ ये बात भी आई कि द प्रॉब्लम इज़ नॉट द बजट। सो और दोनों तरफ से जो लॉजिक दिया गया या रीजनिंग दी गई वो मुझे सही लगी। सो फॉर इंस्टेंस मैम रिफत जबीन सेट के 1.7% इज़ नॉट इनफ इफ़ यू हैव टू एजुकेट अपने जो 40% जो बाहर हैं लोग, उनको एजुकेट करना, यू हैव टू स्पेंड मोर। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी आई कि स्टार्ट में जो बात हुई थी कि कुछ जगहों पे बजट बढ़ाया गया और एजुकेशनल आउटकम्स बेहतर नहीं हुए, ऑन द अदर हैंड बजट बढ़ाए बगैर भी एजुकेशनल आउटकम बेहतर हुए। सो व्हाट्स द वर्डिक्ट ऑन द बजट यार? मैंने एक बार दोबारा सुनना चाहता हूँ कि व्हाट्स दिस डील विद बजट? क्या हमने बढ़ाना है, क्या हमने नहीं बढ़ाना है, कितना अहम है और कितना इस पर फोकस करना है? Thank you, Ji. So we take one more question. No more comments, but one more question. We've had two comments, but एक और question and then we'll go to the panel before we break. अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम अदनान अली आबिद है और मैं 2023 फेलो हूँ। मेरा सवाल मैम रिफत से है क्योंकि वो एफडी के साथ इन टच हैं और ज़ाहिर है पॉलिसी के अंदर भी उनका एक रोल है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे टीच फॉर पाकिस्तान काम कर रहे हैं या दीगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं एफडी के साथ, हम शुरू से पर्पज़ की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टीच फॉर पाकिस्तान का एक पर्पज़ है स्टूडेंट्स को लेकर, फेलोज़ को लेकर, वो उस पर्पज़ के तहत काम करता है। इसी तरह दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी एक पर्पज़ के साथ काम कर रही हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एफडीई का क्या पर्पज़ है, वो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के पर्पज़ को अपना पर्पज़ समझता है या फिर उनका एक पर्पज़ है और वो उसके साथ एनजीओज़ को अलाइन करता है बेसिकली। तो इस प्रोसेस को समझना चाह रहा हूँ क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि टीचर्स जो एफडी के साथ काम कर रही है, एफडी की परमानेंट फैकल्टी है, वो इनसिक्योर हो रही है ऑर्गेनाइजेशन से या एनजीओ से। वो कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज करने जा रही है हुकूमत। तो वो पॉलिसी या पर्पज़ को मैं समझना चाह रहा था। थैंक यू जी। सो वी हैव 2 क्वेश्चंस जो अब हम पैनल की तरफ जाएंगे बिफोर वी ब्रेक। वन इज़ अबाउट फाइनेंसिंग, व्हाट्स द वर्डिक्ट? पैसे और चाहिए या ये पैसे बेहतर खर्चने हैं? इज़ इट अ बाइनरी आइदर और? So I'll let one of you take that. And the second is about जो हमारे एजुकेशन डिलीवरी सिस्टम है उसका पर्पस है क्या? So मैम रिफत with the purpose and financing, any one of you? फाइनेंसिंग की जहाँ तक बात है, you know, with the increasing population, we need more schools. और there are 26 million आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन और उनको भी स्कूल में लाना है और जो इन स्कूल हैं उनके लिए भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इन्हांस करने के लिए टू हैव मोर फैसिलिटीज़ इन स्कूल ऑब्वियसली बजट की ज़रूरत है। लेकिन उस बजट को एफिशिएंटली स्पेंड करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बजट हमें मिल रहा है, जो फैसिलिटीज़ स्कूल्स में प्रोवाइड कर दी गई हैं, उनके बाद उनकी जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है टू अचीव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बजट को इंक्रीज़ करना फॉर द पर्पज़ जो मैंने आपको बताया कि इसके लिए ज़रूरी है, बट जो बजट है और जो हमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन और उस बजट को वाइजली स्पेंड करना और उन एरियाज़ में स्पेंड करना जो बहुत पर्टिनेंट है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो वो एक पॉलिसी के तहत जो है, एक पॉलिसी मैटर है जिसके तहत वो स्पेंडिंग की जाती है और ऑब्वियसली बोथ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, टू इंक्रीज द बजट एंड टू स्पेंड द बजट वाइजली। आपका जो दूसरा सवाल था कि हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, तो बेसिकली हमारा जो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उसका जो विजन है इज़ टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जो बच्चे आ रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स, उनको वही एजुकेशन का मयार प्रोवाइड किया जाए जो कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में अगर जा रहा है तो उसके लिए जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट है उसका, वो भी उसी तरह से हो। सो फॉर दैट पर्पज़ वी आर इन्वाइटिंग ऑर्गेनाइजेशंस जिनका बहुत रिनाउंड बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जैसे टीच फॉर पाकिस्तान के साथ हमारा 6 years इट्स बिन और हमारा एक बहुत अच्छा जो एग्रीमेंट है और एक अच्छा रिलेशनशिप है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग अस विद द फेलोज लाइक यू। तो उसमें वी नीड टू सेट सम एग्जाम्पल्स कि इफ़ द थिंग्स विच नीड टू इम्प्रूव इन आवर सिस्टम, हमारे टीचर्स को अपनी टीचिंग क्वालिटी को अगर इम्प्रूव करना है और करना चाहिए और किस लेवल पे हम देखना चाहते हैं, तो दे शुड हैव सम एग्जाम्पल्स। और इसमें किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि लॉट ऑफ NGOs आर कमिंग इन। मैं हमेशा टीचर्स से भी जब मेरी डिस्कशन होती है, आई यूज्ड टू से देम कि ये आपके लिए, आपके स्कूल की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है और स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स और डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं, सो वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। और ये एक दूसरे की सपोर्ट के लिए एक मैकेनिज्म है, इट्स नॉट फॉर लाइक कि किसी के दूसरे के लिए थ्रेटनिंग हो। तो दिस इज़ ओनली द पर्पज़। और NGOs ऐसे नहीं होता कि दे जस्ट कम इन, वी हैव थॉरो डिस्कशंस, वी प्लेस फॉरवर्ड आवर नीड्स और हमारी अपनी नीड के मुताबिक हम उनकी प्लेसमेंट करते हैं।